السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد علی حسن ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی آواز۔ آج مدرسہ سراج العلوم طلافت گنج میں بچوں کے سروں کے اوپر جو ہے دستار بندی باندھا گیا۔ اس اہم موقع پر مفتی ابوذر قاسمی خطاب کر رہے ہیں، آپ ان کے بیانوں کو سنیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں وہ حفظ کے دوران وہ فیس دیں تب ان کو کھانا مل، یہ نہیں۔ البتہ آپ جب تیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہیں جوڑ دے گا تو آپ یہ عہد کیجیے کہ ہر زمانے میں زندگی کے ہر حصے میں کسی نہ کسی حافظ غریب یتیم حفظ کرنے والے کی ہم سفارش کریں۔ بہت آسان کام، اور میں یہ بات ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ جو مدرسہ کے پڑھے ہوئے لوگ اسکولوں میں گئے یا بورڈ کے مدرسوں میں گئے، وہ اپنے علاقہ کے مدرسے کو کم سے کم ہر مہینہ 500 یا 1000 روپیہ دیں، تب جا کر جو انہوں نے قوم کا کھایا ہے اور مدرسے میں رہ کے پڑھا ہے، تو کسی حد تک آپ کہہ سکیں گے کہ ہم قوم نے جو ہم پر امید کیا تو ہم کچھ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بغیر سند کے میں نہیں بول رہا ہوں، ہم سب کے استاد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس میں کہتے تھے کہ پختہ عمر میں نے قرآن یاد کیا۔ بچپن یادداشت طلب ہوئی، بچپن میں اگر قرآن محفوظ کر لیا جاتا ہے تو بچہ نہیں بولتا، لیکن پختہ عمر میں 50 سال میں 40 سال میں اگر قرآن یاد کیا جاتا ہے تو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اب بات چل رہی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ تانا بنتے تھے ہینڈلوم، اور ہینڈلوم چلاتے چلاتے انہوں نے قرآن یاد کیا، بہت قرآن یاد کیا، پیچھے لقمہ دیتے تھے، لیکن چونکہ استاد کے سامنے سنایا نہیں تھا اس لیے قرآن سنانا مشکل تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں قرآن نہیں سنا پاتا ہوں تو میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نفل میں قرآن پڑھ لیتا ہوں روزانہ ایک بار، جیسے آپ کو بتایا، اور میں ہر سال حفظ کرنے والے ایک بچے کی کفالت کرتا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ گویا کہ قرآن کی عظمت آپ کے دل میں ہے، ایک حفظ کرنے والے کی کفالت کر رہا ہے، تو یقیناً جو ہے جب قرآن کی عظمت رہے گی تو قرآن کو نکالا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حافظوں کو، ایسے سینوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو۔ اگر آپ محفوظ کر کے چلیں گے، ہماری ذمہ داری کتنی ہے؟ زندگی تک ہے، اس کے بعد تو اللہ کے حوالے ہو جائے۔ زندگی بھر قرآن کی حفاظت کا سامان کرنا، جو صحبت ملتی ہے صحبت کا مکمل اثر پڑتا ہے، جتنا اثر پڑھنے کا نہیں ہوتا، پڑھانے کا نہیں۔ ہمیشہ گارجین کو ایسے بچوں کو عالموں کی صحبت میں لا کے ڈالنا چاہیے اور ملاقات کروانا چاہیے بزرگوں کے ہاں۔ صحابہ کرام کا یہ ماحول تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کسی بڑے صحابی سے ملاقات کروایا تو ان کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ المیرا ہے ہر ایک کے ہاں کمرے میں، گھر میں گودریج، اس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں، اس کا ایک خانہ ہوتا ہے، اس میں آپ گلاب کا پھول رکھ دیجیے، کپڑوں کے ساتھ بند کر دیجیے المیرا۔ 2-4 وقت کے بعد کھولیے تو پورے المیرا میں گلاب کی خوشبو آئے۔ صحبت نے اتنا اثر کیا، صحبت کرتے ساتھ رہنے سے آپ ساتھ رہیں گے، علماء کی یا علماء کے یہاں آنا جانا رہے گا۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کو شکایت کرنے کہنے کے لیے، گارجین ہوگا کہ ہمارا بچہ گھر آتا ہے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو مجھ کو ہی شرم لگتی ہے، لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیا بچہ کہاں فجر کی نماز کے لیے جائے گا یا آپ بھی جائیں گے؟ کہا نہیں، وہ مدرسہ میں پڑھتا ہے اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ بھی فجر کی نماز پڑھے۔ یہ آپ کی خواہش کبھی نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔ آپ اگر خود فجر کی نماز کو جائیں گے تو یقیناً کوئی مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ وہ غیر حاضری نہیں کرتا، لیکن آپ نہیں جائیں گے پھر صحبت کا عدم پڑھنا۔ ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ایک آدمی کی اچھی سوچ سے سب بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے۔ ایسے بزرگوں کے گھرانے کو دیکھتے ہیں کہ بچیاں، گھر کی عورتیں سب تلاوت نماز کی پابند ہیں، لیکن عورتوں کو تھوڑا نماز میں ٹائم لگتا ہے،
और हम लोग तो 5 मिनट में पढ़ के चले आते हैं। 4 रकअत फिक्स है, 5 मिनट, 4 रकअत 5 मिनट। अब जो किसी तरह से आ गए और औरतें नमाज में लगी हुई है तो गुस्सा तो चढ़ जाता है। ये तो आप में से बाहर होते रहते, जिसको स्कूल जाना है, मदरसा जाना है, ये लगी हुई नमाज। कहा कि भाई इतना चल तुम लगा, कहा तो हम तो क्या करें, हमें तो सिर्फ 12 रकअत पढ़े, 10 रकअत पढ़ा है। 4 रकअत ज़ोहर से पहले, 4 रकअत ज़ोहर और फिर 2 रकअत 10 रकअत पढ़ा, और उतना तो हम ही पढ़ गए। आपको क्यों नहीं टाइम लगता? कहते हम लोग फिक्स से प्रैक्टिस हो चुका है, 5 मिनट से 4। अब वो इत्मीनान से नमाज पढ़, ये माहौल बन जाता है, बड़ा मजा आता है। ये माहौल बनाइएगा तो बड़ा मजा है। 1-2 बातें मैंने मुलव्वज़ कर लिया था ताकि कुछ जो है बात करने में बात रह न जाए। अभी इस वक्त माशाअल्लाह तारुफ भी आप हज़रात ने किया और छत की ढलाई हो रही। ये आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, कौम की जरूरत है, इदारे की जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है। हमारी ऐसी दरगाहें होंगी तब जाके ऐसा माहौल बना हुआ रहेगा, उलमा की कदर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनका भी तारुफ है, लेकिन एक खास बात रह जाती कि जिन असातिज़ा किराम ने इन पर मेहनत की, कितनी मेहनत की जरा सोचिए। अलिफ और बा को सही कराने में पूरी ताकत झोंक, 24 घंटा मगरिब बाद, फजर बाद, इनके आ जाइए बाबू खौफ निकालो, खौफ अलग से कहते होता 24 घंटा लगा। एक मजदूर 6 घंटा 8 घंटा में पारी होकर 400 रुपया कम से कम लेता चला है। इनकी तनख्वाह है, 9,000, 10,000, 11,000, इससे ज्यादा तो अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। आप 400 रुपया भी देंगे तो 12,000 तनख्वाह होनी चाहिए कम अज कम, और वो भी 6 घंटे। इन्होंने जो रात दिन दिया तो आप इनकी क्या कीमत करते हैं? अगर इनको हौसला नहीं मिलेगा तो कैसे ये काम करें? ये एक हर्फ दुरुस्त कराए इन बच्चों, कुछ नहीं जानते, और फिर एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने का तरीका बताए, फिर एक कलमा को दूसरे कलमा से मिलाना, और फिर उसके बाद एक आयत को जाना। मामूली मेहनत नहीं, मामूली मेहनत। बड़े बुजुर्गों से हज़रत मुजफ्फरपुरी से मैं सुनता था कि आप लोग अल्लाह के खजाने की तरफ देखिए, आपने अल्लाह के कलाम की खिदमत की है, कुरान मुक़द्दस को याद करवाया है, लोग क्या करेंगे? आपके लिए खजाना खुलेगा अल्लाह ताला, यकीनन खजाना खुलेगा अल्लाह ताला, और बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं। यही क्या है? ये बेनियाज रहते हैं, किसी कम तनख्वाह पे मस्त रहते हैं, माशाअल्लाह, मोटरसाइकिल साइकिल जो भी मिल जाए उस पर खुश रहते हैं। घर जाते हैं 2-4 रुपया की दवा में काम चल जाता है। कभी जो है उसको बड़े हॉस्पिटलों में जाने की अल्लाह ताला नौबत नहीं आने, ये बड़ा सिला है। हम लोग निकलते हैं तो यकीन जानिए, कुर्ता सिलाते हैं तो कहेगा आप क्या दीजिएगा, आप सिलाई छोड़ दीजिए, वो नहीं देता। मोटरसाइकिल में हवा, वो पैसा नहीं देता। परेशान है, कोई पैसा ही नहीं देता, सब पैसा बच जाता। तो आप सब कभी सोचेंगे, खिदमत करते थे, खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहिसाब न अल्लाह ताला निगाह डाल देगा। यही तो मैंने कहा कि आपका इंतखाब करें। अल्लाह ताला 1 करोड़ को नवाजते हैं, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी लगाते हैं। ये मैं इनके असातिज़ा से कह रहा हूँ। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सबके जिम्मे उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द जिम्मेदार है कि वो मारूफ की बात करें, मुनकर से रोके। लेकिन ये ड्यूटी मुस्तकिल 24 घंटे की मिली है इस खास जमात, ये खास तबका, उलमा के हुफ़ाज़। ये खैर है क्या? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की वज़ाहत फरमाई है, इत्तिबाउल कुरान व सुन्नत, कुरान की पैरवी और सुन्नत की पैरवी। कुरान सीने में है, कुरान की पैरवी हमको नहीं आएगी तो दूसरे को आएगी। और कुरान को सुन्नत से समझा जा सकता है, इसलिए कुरान की तफसीर भाषा ऐसा बन जाइए कि वाकई हर आदमी में। एक बादशाह की बेटी बहुत जीरक चालाक ज़हीन थी, उसका पैगाम तो पूरा मुल्क से आ रहा था, लेकिन उसकी एक शर्त लगी। शर्त क्या?
कि मैं अपने पसंद का रिश्ता करूंगी। बादशाह तक ये खबर पहुंची, काजी मंजूर है, काठी के एक मैदान खाली कराया जाए, वहां वो पहुंची और उसने कहा मेरा एक मिसरा है, जो जवाब देगा उसका जोड़ा लगा देगा, उसी से शादी करूंगा। और कोई मुतालबा नहीं। उसने मैदान में जाके कहा और सारा मजमा लग गया कि हमारा रिश्ता कबूल हो जाए। उसने जोड़ा सबका मुतालबा, उसने कहा हुस्न कहता है कि कुरान हूं मैं। आप सब इतने हसीन, हुस्न कहता है कि कुरान हूं मैं। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, बगल झांक रहे थे, क्या जोड़ा लगा। ये सिराजुल संग्राम का एक हाफिज उठा कहा मैं जोड़ा पागल गरीब का बच्चा जिसके घर में रहने की सहूलियात, ये बादशाह से बेटी से शादी करने का ख्वाब देख रहा का नहीं, वो ख्वाब नहीं देख रहा हूं, लेकिन जोड़ा लगाना है मुझे। आगे गया, कहा उसको इजाजत हो, हुस्न कहता है कि कुरान हूं मैं, क्यों न चूम लूं के मुसलमान हूं। तो लड़की ने कहा वाकई यही मुझको पसंद है। ऐसे ही हूर जो है आपसे आपके आगे पीछे करे, अल्लाह ताला मेरे दुल्हा को आप भेज दिया। आप इतने लोगों ने आपको मान लिया कि दुल्हा, लेकिन अगर वहां का दुल्हा बनना है तो यहाँ मुश्किलात कुछ बर्दाश्त करना। अल्लाह से दुआ भी करने की पूरी कौम के लिए फलाह और खैर है इसके साथ। मैंने खैर की तशरीह किया कि हुजूर ने फरमाया इत्तिबा कुरान व सुन्नत, ये खैर सबको चाहिए। आप हजरात जो खैर ही की दावत लेकर के आगे बढ़ेंगे वो यही है, पहले कुरान और सुन्नत, ये हमारी जिंदगी में आ जाए, उसके बाद तो इंशाअल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। तो इस वक्त जितनी बातें हुई वो सिर्फ इसलिए हुई है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। अल्लाह की रजा के लिए जो हजरत ताउन में आ गया, वल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा'i वज़र्रा वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास, चार बातें हुई अल्लाह ताला ने बताई। क्या कि जो लोग तंगी में और खुशहाली में दोनों में खर्च कर रहे हैं, खुशहाल 1 लाख रुपया लाएंगे और तंगहाल 100 लेके आए। हम तो कहते हैं पैसा 1000 का ही नहीं तो हजार ही आप 500 पर बस कर दिया, लौटी देने वाले 500 से आगे नहीं बढ़ा, मुसीबत हो गई। लिहाजा आइंदा ख्याल रखे, हजरत 2-4 रुपया निकाल के दिया करें ताकि आपकी तकलीफ में लोग वही काम करें। तो अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में क्या कर हाथ सिर्फ अल्लाह के खजाने में पड़ जाए, कोई अपना देगा, कोई अपना नहीं देगा, उधर मिलेगा इधर देने में कितना मजा है। हमारा आवत प्रताप गढ़ी क्या एक शायर गया और वो कहने लगा अल्लाह की झोली में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह की झोली में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह ताला तन्हा है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं। जो कुछ लेना है हमें ले लेंगे मोहम्मद से, अल्लाह की झोली में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद से। तो हजरत ने फरमाया कि कितना मांग लेते हो दिन भर में, 150-200 रुपया उस वक्त में बहुत हो गया, अभी 1000-2000 भी उसके मुकाबले का नहीं है। हजरत ने फरमाया बैठो, पूरे दिन का हम जो है खर्च दें, जितना तुम मांगते हो हम करा देंगे। ये मिसरा ठीक करो, ये शेर को ठीक करो, ये कहो अल्लाह की झोली में ये जो तुम पढ़ रहे हो ये वहदत के सिवा क्या है, कहो अल्लाह की झोली में मोहम्मद का हाथ पड़ा, अल्लाह की झोली में मोहम्मद का हाथ पड़ा है, जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे। खुदा की कसम इन बच्चों का हाथ अल्लाह की झोली में चला जाएगा और फिर इनको जो कुछ लेना है अल्लाह ताला निकाल देंगे। अल्लाह हम सबको